Hello students. So today we will start with our next topic, which is binomial theorem, which is the next mathematical tool which we have to study in physics, right? So in the previous lecture we have studied about the trigonometry and its various formulas which are to be used in physics derivations as well as numericals. But now today we will start with a new concept, which is binomial theorem, which is a part of maths, basically +1 maths, but it has to be used in physics as well as, and as you are medical students, so you have to understand this topic properly. So first of all, you just tell me if you are having a formula a plus b whole square, so you can easily solve it like a square plus b square plus 2ab, right? You are having a plus b whole cube, you can easily solve a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. Now if you have to solve the value of a plus b raised to power 4, you are not having any formula of a plus b raised to power 4, but still we can solve it like a plus b square and then whole square again, right? A square plus b square plus 2ab, then again whole square. We can use it and further we can solve it, right? Similarly, a plus b whole raised to power 5, so it can be solved with the help a plus b cube and then whole square. But don't you think it will be a difficult method to solve? First of all, you have to cube it and then square. So to get rid of this long calculation, we are having a formula which is called binomial theorem, which is to be used in physics numerical or difficult situations. We can say at the end of numerical, sometimes the situations are like the equations are very difficult to solve. So for that we can use binomial theorem there. So what is the formula for binomial theorem? First of all, so this is a basic formula, 1 plus x raised to power n, means we can solve any type of equation with this, like 1 plus x raised to power n means n can be anything. N is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n can be 4, 5 and so on, right? So any power we can solve easily with the help of this equation. So just see this, 1 plus x raised to power n is 1 plus nx, right? 1 plus nx plus n into n minus 1 into x square upon 2 factorial. I will tell you later on about this factorial. Then n minus 1, n minus 2, x cube upon 3 factorial. Then continue n minus 1, n minus 2, n minus 3, 4 factorial and x raised to power 4 and so on. What will be the next step? Can you tell me what will be the next step? Next step will be n. You can easily observe from it that value of n is decreasing in each step. Here it is n. Next step n into n minus 1. Next n into n minus 1 into n minus 2. Next n minus 1, n minus 2, n minus 3. And next will be automatically n minus 1, n minus 2, n minus 3 and n minus 4. Similarly, here it is no 1 factorial is 2, here it is 3, here it is 4, and next should be 5 factorial, and here x raised to power 2, x raised to power 3, x raised to power 4, and here it should be x raised to power 5. So you can easily predict the next step also. Can you tell me the next step? Yes. Pause the video and write the next step and then again play the video. Yes. So the next step will be n minus 1, n minus 2, n minus 3, n minus 4, n minus 5 upon 6 factorial and x raised to power 6 plus so on. ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है वो एज इट इज आगे चलता जाएगा. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फैक्टोरियल? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फैक्टोरियल जो मैंने लिखा है 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फैक्टोरियल? ओके, सो फैक्टोरियल मीन्स लाइक हियर 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल मीन 2 into 1 मीन्स आपको उसको कंसेक्यूटिवली खोलना है, एक एक स्टेप नीचे आके 1 तक जाना है. 2 फैक्टोरियल इज 2 into 1, 3 फैक्टोरियल इज 3 into 2 into 1, 4 factorial is 4 into 3 into 2 into 1, 5 factorial is 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Now can you tell me the value of 6 factorial? Pause the video and write it and then again play the video. Just tell me 6 factorial. It will be
6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, right? So this is the meaning of factorial. One more thing, you need not to derive this formula in case of physics, you have to just use it. तो अब हमें ये नहीं करना कि हाँ ये फॉर्मूला कैसे बना, ये फॉर्मूला मैथ्स में जब आप चैप्टर करोगे, जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जब वो करेंगे तो उसको उनको कराया जाए कि ये कैसे बना, बट हमें तो सिर्फ इसका फिजिक्स में यूज़ करना है. तो जस्ट मेमोराइज दिस फर्स्ट 2-3 स्टेप्स और नेक्स्ट स्टेप तो आपके अपने आप बनते जाएंगे, ठीक है. और हमने इसको कहाँ तक खोलना है, कितने नंबर तक खोलना है. देखो अगर 1 + x की पावर 5 है तो आप कहाँ तक खोलोगे, x की पावर 5 तक. अगर यहाँ पे 6 है तो आप 6 तक खोलोगे, यहाँ पे पावर 3 है तो आप 3rd तक खोलोगे, राइट. तो जितना जितना आगे जाता जाएगा उतने उतने जो है पावर आप उसको एक्सपैंड करते जाएंगे, ठीक है. तो जनरल फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया. 1 + x raised to power n is equal to 1 + nx plus n into n minus 1 x squared upon 2 factorial plus n into n minus 1 n minus 2 x cube upon 3 factorial and so on, ठीक है. और 2, 3, 4 फैक्टोरियल कैसे लिखने हैं वो मैंने आपको बता दी है, राइट. ओके, अब इसमें अगर हम लिखें तो बार बार इतना लंबा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है. हम यहाँ पे सीधा ये लिख सकते हैं कि जो आपका ये फॉर्मूला है जनरल 1 + x raised to power n is equal to this and so on, राइट. ऐसे चलता जाएगा आगे. अब यही चीज़ एक और देखो, अगर आपके पास कहीं पे आ जाए 1 + x raised to power -n, मतलब पावर जो है नेगेटिव में आ जाएगी, तब आप क्या करोगे, ये सारे स्टेप्स अल्टरनेट हो जाएंगे. जैसे ये प्लस का है ना पहला, फिर अगला प्लस का है, सारे प्लस के हैं. अब क्या होगा, पहला प्लस का, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस. तो इसको कैसे लिखेंगे बोलो, पहला 1 प्लस का, फिर आगे अपने माइनस ही करना पड़ेगा आपको. अगर ये फॉर्मूला -n अगर आता है तो क्या लिखेंगे, -nx. अगला स्टेप फिर प्लस का लिखना है, n into n minus 1 upon 2 factorial into x square. फिर अगला स्टेप फिर माइनस का, एंड फिर अगला स्टेप फिर प्लस का, एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है. ये भी याद रखना है आपने. तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. क्लियर है. अब अगर किसी आ जाता है आपको 1 - x raised to power n, अगर -x raised to power n तो भी सेम ही फॉर्मूला बनेगा, बिल्कुल सेम डिट्टो. 1 - x की पावर n आ जाता है तो ठीक है. चाहे 1 + x की पावर -n आ जाए, चाहे 1 - x की पावर आ जाए, तो भी यही बनना है. पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और ऐसे आप खोलते जाओगे. फिर अगर 1 - x raised to power -n आ जाता है तो आप क्या करोगे, दोनों ही माइनस के हैं ना, तो फिर आपका सेम वही बन जाएगा जो फर्स्ट वाला था. क्या था वो, 1 + nx plus n into n minus 1 upon 2 factorial into x square plus n into n minus 1 n minus 2 x cube upon 3 factorial and so on. ठीक है जी. तो इस तरह से जो है आपके वो फॉर्मूला हम एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है. ओके, अब हम देखेंगे कि इसको फिजिक्स में हमने कैसे यूज़ करना है, उसका क्या यूज़ है प्रैक्टिकली, कि ये फॉर्मूला तो हमने कर लिया बट इसका यूज़ क्या है, ठीक है. अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप पॉज करके इसको नोट करिए ये फॉर्मूलेस को, राइट. और अब मैं नेक्स्ट स्टेप जो है आपको बताता हूँ कि इसको हाउ वी कैन यूज इट इन फिजिक्स, राइट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल solve some equations using this formula, then I will tell you the use of this in physics. Okay, so suppose you have to solve the value of 1 + x raised to power 4. So just write the formula, pause the video, write the formula, and then again check your answer. So it will be 1 + 4x plus 4 into 4 minus 1 3 x square upon 2 factorial means 2 into 1 plus 4 into 4 minus 1 3 into 4 minus 2 2 into x cube upon 3 factorial. 3 factorial means 3 into 2 into 1 प्लस एक स्टेप और आएगा ना आगे, क्योंकि x की पावर 4 है तो एक और खोलो, क्या बनेगा 4 into 3 into 2, तो एक n माइनस अगला भी आ जाएगा, तो 4 minus 3 1 अपॉन नीचे 4 फैक्टोरियल आएगा, तो 4 into 3 into 2 into 1 और x की पावर 4. बस यहाँ तक खोलेंगे क्योंकि 4 ही है पावर. तो यहाँ तक जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको कटिंग करो, ये कटिंग हो जाएगी, यहाँ से ये भी कटिंग हो जाएगी, ये भी कट हो जाएगा. तो आंसर विल बी 1 + 4x plus 2 3 the 6x square plus 4x cube plus 4x4. So this will be the final answer. ठीक है. तो इस तरह से जो है हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट. क्लियर हो गया ना सबको. बस ये अगर यहाँ पे अब मुझे ये बताओ, अगर इसी पे मैं चेंज करूँ कुछ, यहाँ पे मेरे पास -4 आ जाए तो क्या करोगे आप,
हाउ यू विल डू इट? अगर -4 आ जाता है तो, अगर मेरे पास यहाँ पे -4 आ जाता है तो क्या करेंगे बताओ? साइन चेंज हो जाएगा, पहला प्लस का, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस एंड देन फिर प्लस। बस ऐसे कोई भी चेंज कर सकते हो आप, राइट? जैसे पहले फॉर्मूले बताए हैं। क्लियर हो गया इतना? ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि हाउ यू विल यूज इट इन फिजिक्स। ठीक है, इसको मैं अब कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज हाउ यू विल यूज इट इन फिजिक्स। अब देखो फिजिक्स में हमें इतना बड़ा एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूले। जैसे मान लो ये तो आ गया आपके पास कि 1 + x की पावर अगर 1/2 आ जाता है या 1/3 आ जाता है, तब कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए पूरा आपको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। वो देखो क्या यूज़ करना है हमें फिजिक्स में उसका। देखो सपोज मेरे पास यहाँ पे है x की वैल्यू है 0.02, इसकी मुझे पावर 1/3, जो पहले 3 कर लेते हैं। चलो हम 1 + 0.02 की पावर 3 हमने सॉल्व करनी है। तो अब क्या लिखोगे इसको? 1 + nx, n क्या है? 3, x है आपका 0.02, राइट? प्लस 3 × 3 - 1 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 × 1 और x स्क्वायर मीन्स 0.02 का स्क्वायर, प्लस फिर एक स्टेप और खोलना ना, हमने x क्यूब तक जाना है तो 3 × 2 × 1 और नीचे भी 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 और 0.02 का क्यूब। अब हम उसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 1 + 0.06 प्लस 0.02 का अगर स्क्वायर करें तो कितना बनेगा? वो 3 × 0.02 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो ये 2⁴ हो गया और 10⁻⁴ कितनी हो गई है? -2 तो अभी है, ठीक है, तो वो -4 हो जाएगी। और ये वाला 4, 2⁴ 4⁴ 8 × 10⁻⁻6 है ना। तो इसको फिर हम कैसे लिख सकते हैं? 1 + 0.06, ये पावर मैंने एडजस्ट की ना, 10⁻⁻2 का -4 बन गया। चाहे आप इसको पॉइंट करके लिख लो तो ये बन जाएगा 3⁴ 12 ना, और पीछे 0.00012 आई थिंक सो। देख लेना आप, ये पावर ठीक है पॉइंट हटा के। और इसका 0.0000008। तो अब मुझे बताओ अगर हम फाइनल आंसर लिखें तो इसमें 1.06012 ये पीछे ऐड हो रहे हैं। तो ये अगर ना भी अगर इसमें ऐड करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा इस नंबर को? कोई नहीं करेगा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर x की वैल्यू छोटी है, यानी कि 1 से बहुत छोटी है x की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे? ये हायर टर्म्स को नहीं लिखते। हायर टर्म स्क्वायर वाली या क्यूब वाली को लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो इतने छोटे नंबर बन जाएंगे। पहले ही छोटा है x, तो और छोटा बन जाएगा। तो इसलिए इट विल नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल नंबर, क्योंकि इसमें कुछ ऐड पीछे करेंगे तो अगर ना भी करें ये 0.00012 इसमें, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है नंबर को? वो तो यही रहेगा। इसलिए राउंड ऑफ करते हैं वैसे भी हम 2 डेसिमल पॉइंट तक। इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट, और इसको भी क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब हम सिर्फ पहले 2 स्टेप तक ही खोला करेंगे, 1 + nx तक। अगले वाले खोल लेंगे, क्योंकि स्क्वायर करोगे और छोटा हो जाएगा x का, x क्यूब करोगे और छोटा, 4 और छोटा, 5 और छोटा, मतलब पावर अगर करते हैं तो दैट्स वाई हम इतना बड़ा उसको एक्सपैंड करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो हर बार हम क्या लिखेंगे? हम एक जनरल फॉर्मूला लिखा करेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये सबका एक जनरल फॉर्मूला क्या बना दिया मैंने। अगर कहीं पे लिखा है 1 + x⁻n, तो मैं उसको 1 + nx तक ही लिखूंगा और हायर टर्म्स को क्या कर दूंगा? निगलेक्टिंग द हायर टर्म्स। जो हायर टर्म्स है मैं उसको निगलेक्ट कर दूंगा। ठीक है जी। और अगर यही आ जाए मेरे पास 1 + x की पावर -n, तो क्या लिखोगे इसको? 1 - nx, बस हायर टर्म निगलेक्ट। 1 - x की पावर n, तो भी यही आ जाएगा। और अगर तो ये आ जाएगा। मतलब ये 4 फॉर्मूले मैंने नए बन गए फिजिक्स में यूज करने लगे। बट कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड, यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए ना, एक हर बार थोड़ी एप्लीकेबल है। प्रोवाइडेड जो x है वो बहुत छोटा हो 1 से, वेरी वेरी, इट मीन्स वेरी वेरी लेस देन, तो इट शुड बी वेरी वेरी लेस देन 1, तो हम ये जो है फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इन फिजिक्स। क्लियर हो गया इतना सबको? ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करके देखें किसी इक्वेशन पे कि कैसे निकलेगा। ठीक है, अब मैं आपको इस इक्वेशन पे अप्लाई करके दिखाता हूँ कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। राइट, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, यस, तो ये बच गया। अगर किसी ने बोल दिया मुझे कि यू हैव टू फाइंड द रूट ऑफ 10,001, ओके,
तो स्क्वायर रूट ऑफ 10,001 यूजिंग बाइनोमियल। तो कैसे करेंगे, मैं इसको लिख सकता हूँ 10,000 प्लस 1 उसकी पावर 1/2। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला था कि 1 प्लस एक्स की पावर n होनी चाहिए, तो अगर आप इसको उल्टा भी कर दो तो 1 प्लस 1 आगे लिख दो, इसको आगे लिख दो, बट ये तो फिर नहीं बन सकता, ये x कहाँ छोटा है 1 से, तो 10,000 है ना। 1 प्लस ये तो फॉर्मूला इसके साथ बनाने के लिए इसको इधर करना पड़ेगा, इसको इधर करना पड़ेगा, बट 10,000 तो छोटा नहीं है 1 से, बट तो नहीं अप्लाई कर सकते, बट हम एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। ट्रिक क्या है वो देखो, ब्रैकेट के अंदर से यही आपने सीखना है फिजिक्स में कैसे यूज़ करना है। ब्रैकेट के अंदर से ना मैंने 10,000 कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस इसके साथ है नहीं 10,000 तो नीचे आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। देखो इन दोनों में से 10,000 कॉमन निकाला, 10,000 यहाँ पे बाहर आ गया, तो 1 प्लस 1/10,000 और पावर क्या आ गई 1/2। अब इसकी पावर अलग 1/2 करो, इसकी पावर अलग 1/2 करो, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 10,000 की पावर 1/2 अलग इंटू 1 प्लस 1/10,000 मीन्स 0.0001, यही बनेगा ना 0.0001, यस, पावर 1/2। अब बताओ, अब x छोटा है कि नहीं 1 से, तो अब लगा सकते हैं बाइनोमियल। बताओ इस 10,000 का 1/2 तो अलग कर दो, 10,000 का रूट क्या होता है 100, ये एज इट आ जाएगा, और 1 प्लस एक्स रेशो पर n होता है 1 प्लस nx, तो n क्या है आपका हाफ, तो हाफ इंटू 0.0001, तो ये आंसर आपका बन गया 100 इंटू 1 प्लस इसका करोगे तो 0.00005, तो इट विल बी 100 इंटू 1.00005। तो इसको आप एडजस्ट कर लो, अगर आप हम पावर जो है 10⁻² है तो पॉइंट आगे लेके तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 पॉइंट आगे लेके जाएंगे तो 100.005 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, राइट। तो ये आपका बेसिकली बाइनोमियल का यूज़ होगा कि हाँ इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाइनोमियल में लगा के। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ कि कैसे यूज़ करते हैं फिजिक्स में, राइट। अगर मान लो ऐसे आपकी इक्वेशन बन जाती है फिजिक्स में, तो क्या होता है कि हम ना डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, बट हमें उसको इसकी फॉर्म चेंज करके अप्लाई करवाना होता है। देखो जैसे बना 1/√a प्लस बी माइनस 1/√a माइनस बी, इतनी चीज़ क्लियर है। तो इसमें आपको कंडीशन देती है, कहते हैं इसको सॉल्व करो इफ a इज वेरी वेरी ग्रेटर देन b, ये कंडीशन दे दी आपको कि 1/√a प्लस बी माइनस 1/√a माइनस बी सॉल्व करो इफ a इज वेरी वेरी ग्रेटर देन b। तो मुझे इसको अब देखने तो लग नहीं रहा कि बाइनोमियल लग सकती है यहाँ पे, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना, फॉर्मेशन चेंज करनी पड़ेगी। तो कैसे कर रहा हूँ देखो, 1/ इसका मतलब a प्लस बी की पावर 1/2 है, इसका मतलब भी a माइनस बी की पावर 1/2 है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 1/ रूट में से a कॉमन निकाल रहा हूँ, क्या बचेगा अंदर 1 प्लस बी अपॉन ए, a कॉमन निकाल दिया 1 प्लस बी अपॉन ए और पूरे की पावर 1/2 माइनस यहाँ से भी a कॉमन निकाल दिया और अंदर बचा 1 माइनस बी अपॉन ए और उसकी भी पावर जो है वो 1/2 आ गई, राइट। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें देखिए, इसमें a की पावर 1/2, इसमें भी a की पावर 1/2, कॉमन वो तो बाहर ही आ जाएगी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1/a की पावर 1/2, वो तो चलो एज इट इज ही कॉमन आ जाएगी। अब अंदर इसमें क्या बचा 1/1 प्लस बी अपॉन ए रेज टू पावर 1/2, राइट, माइनस 1/1 माइनस बी अपॉन ए रेज टू पावर 1/2, राइट। क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1/a रेज टू पावर 1/2 एज इट इज रहने दो। इसको देखो, अब ये नीचे 1 प्लस बी अपॉन ए की पावर 1/2 है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ ऊपर तो क्या बन जाएगा 1 प्लस बी अपॉन ए की पावर माइनस 1/2 माइनस यहाँ पे क्या बनेगा 1 माइनस बी अपॉन ए की पावर माइनस 1/2, दोनों को ऊपर ले गया, माइनस पावर बन गई, नीचे 1/2 से ऊपर जाके माइनस 1/2 बन गई। अब देखो, अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स रेशो पर एन का फॉर्मूला लग सकता है, 1 प्लस एक्स रेशो पर माइनस एन का फॉर्मूला लग सकता है, बट क्या x छोटा है 1 से, x क्या है यहाँ पे, व्हाट इज x हियर, x इज b अपॉन a, तो b upon a is obviously very very less than 1. Why? Because a is very very greater than b. It is given that a is very very greater than b. So if a is very very greater than b means denominator is very very greater than numerator. So obviously its answer will be very very less than 1. So that's why we can treat it as 1 plus x raised to power minus n and x is very very small. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ 1 plus a raised to power 1/2 as it is.
तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस एन, तो इट विल बी 1 माइनस एन एक्स आ जाएगा, 1 माइनस एन एक्स। तो एन क्या आपका 1/2 ही आएगा, वो फॉर्मूले में ही, अब दोबारा माइनस नहीं लिखना है इसको, 1 माइनस एन एक्स, तो माइनस एन एक्स है आपका बी अपॉन ए माइनस, इसमें भी 1, अब ये 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन है, तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन जो होती है वो 1 प्लस एन एक्स होती है ना, ये फॉर्मूला ना, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, ये होती है। तो 1 प्लस लिखूंगा मैं 1/2 इंटू बी अपॉन ए, बट ये बाहर भी तो माइनस है ना साइन, ये वाला, उसकी वजह से ये वाला साइन जो है अंदर वाला वो चेंज हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, माइनस ही लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बाहर ब्रैकेट के माइनस है। तो अब ये 1 और -1 कट गए, -1/2 बी अपॉन ए माइनस 1/2, यानी कि बी अपॉन 2 है, बी अपॉन 2 है, तो इट विल बी 1 अपॉन रूट ए रेज़ टू पावर 1/2 मीन्स रूट ए, तो ये बन गया इंटू -b/2 है, -b/2 है, -2b/2 है, तो 2 कैंसिल हो गए, तो फाइनल आंसर जो हमारा आएगा वो आ जाएगा, इट विल बी -b अपॉन a रूट ए, यही आंसर है। तो ये फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, राइट। तो इस तरह से जो है हम इसको फिजिक्स में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इससे कुछ क्वेश्चंस लिखवाता हूँ जो आपको घर से करने हैं, और सेम वही चीज़ मुझे होमवर्क जो है आपको सेंड करना है, और इस बार सबको सेंड करना ज़रूरी है, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखवाता हूँ अभी इसके। Yes students, these are your homework questions, so just note it down. First is 5 times 9 penta 9 and raised to power 1/5, you have to solve it. So just I'm giving you a hint, so just make its factor in terms of 1, जैसे कि 1 tens 100 1000 lakh, तो it is 99,999, right? तो you can write it as 1 लाख माइनस 1, ठीक है, इसको ऐसे कर लो। इसमें x प्लस बी रेज़ टू पावर 5, बट कंडीशन इज x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन b, तो आप इसमें से x कॉमन निकाल के फैक्टर बना, ऐसे ही 999 रेज़ टू पावर, ये क्यूब रूट है इसका, तो पावर 1/3 हो जाएगी, और ये है r² अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर, वेयर r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन h। तो यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन, एंड अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। बट ये आज शाम तक 6 o'clock तक मुझे ये मिलने चाहिए इसके सोल्यूशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।